So good morning all. Now the next theorem is from the elliptic orbit, and the theorem is a particle moves in an ellipse under a force which is always directed towards always directed towards its focus. Find number 1 the law of force, number 2 the velocity at any point of its path, and then third one which we have to find is the periodic time. Okay, so let's find this one now. To prove this theorem, first we'll draw an ellipse because we have an elliptic orbit, so we are taking an ellipse here. Okay, it will be our ellipse. So here you have L, latest rectum भी होगा ellipse है तो obviously vertex होंगे. Okay, so let A as a vertex, L and L dash as a latest rectum, L dash as a latest rectum, and let S be the focus. Okay, excuse me. Here O is the origin, right? This is y-axis. Now, we all know that the polar form of the ellipse क्या होता है girls? बोलिए. We know that the polar equation of an ellipse. What is the polar equation of an ellipse, girls? Refer to its focus as pole is. सबने पढ़ा, देखो अभी याद आएगा. L by R equal to 1 plus E cos theta. Yes. Have you read this one, girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So now, what we are doing, we are putting the value R equals to what? 1 by U. Therefore, this equation number 1 will become 2. Okay, तो L into U लिख सकते, equal to 1 plus E cos theta. And from here I have U equal to 1 by L plus E by L into cos theta. Right? Question number 2. Now we are going to differentiate this one. Now differentiating with respect to theta. We have, so what we have here? We have du by d theta is equals to, ये तो 0 हो गया, plus E by L. So we have a cos theta here, so this is minus E by L sin theta हो जाएगा. So therefore this is equal to what? Minus E by L sin theta. Right. Now after that, while again differentiating this thing with respect to theta, what we have? So again differentiating with respect to theta. So what we have again? d2u by d theta square is equals to what? Minus E by L cos theta. Okay, girls? This is ऊपर the करेंगे. common value. Yes. Okay. See this. Take a screenshot, girls. Those who have not completed, just take a screenshot. Now, what we have asked in your question, यहाँ पे बोला गया पहले फाइंड करना द लॉ ऑफ फोर्स.
तो लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में करा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, गर्ल्स? What is the differential equation of the? So here for the first part, we'll write like this. We know that the differential equation of central orbit in polar form, ये हो जाता है h square u square u plus d to u by d theta square equals to p. Okay, we have proved this one. Those who have not seen, just go for the video lecture. Now this apply. Here it is h square u square. Now what is the value of u here? So u is 1 by r. तो r के टर्म्स में नहीं लिखना है, u के टर्म्स में लिखना है. So we'll put it u. Now plus. Here it is d to u is minus e by l cos theta. So now write minus e by l cos theta, and this is equals to what? P. Okay. So this imply h square u square. Now put the value of u here. So u is what? Let's see the value of u from here. So here we have u as equation number 2, L by R plus E by L cos theta, which we have generated here. So now put the value of u. So while putting the value of u, I have minus E by L cos theta plus L by R plus E by L cos theta. And this value is equals to what? P कहाँ से use किया? तो from 1 से हमने यूज किया. यहाँ पे d2 u by d theta के स्क्वायर को पुट किया है, तो पुट दिस वैल्यू एज 3, देन पुट दिस एज 4. सो हियर आई हैव अप्लाइड फ्रॉम 4. ओके, तो ये हमें एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया. यहाँ से देखो ये कैंसिल, तो मिल जाएगा h स्क्वायर u स्क्वायर, और यहाँ से ये l है, और ये यहाँ पे r हमें मिल गया है. ठीक है, 1 by l था गर्ल्स. Wait, I have done some mistake here. Yes, 1 by L, not L by R. It is 1 by L. Okay. So now here it is, therefore, h square u square. तो यहाँ पे 1 by L था, that means divided by L, and this value is equals to what? P, and this imply P equal to h square divided by L into R square लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि U की वैल्यू है 1 by R, and therefore here P is equal to, if we'll write mu by r square, mu क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू h स्क्वायर बाय l को पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? therefore p is inversely proportional to 1 by r square. तो यही हमें लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करनी थी, राइट? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है? यहाँ पे हो गया hence the acceleration varies inversely as the square of the distance of the particle from the focus. Right? Is it clear, girls? I'm showing you the full screen. Just take a screenshot. Yes, so here we have completed the first one only, the law of force. तो ये हमें यहाँ पे मिल गया. अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट जो हमें फाइंड करना था, वहां पे क्या था? वेलोसिटी को यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे. क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट में जो पूछा गया है वो क्या है, देखते हैं. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. तो जब वेलोसिटी के बारे में हमसे बात किया गया है, तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन हाउ द वेलोसिटी विल बी ओरिजिनेटेड. तो कैसे वेलोसिटी जनरेट हुआ था? तो वहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि v स्क्वेयर इक्वल टू h स्क्वेयर
into u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लास्ट लेक्चर जा करके देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट के लिखेंगे, फिर we know that the linear velocity at any point of the path of a central orbit, यहाँ पे सेंट्रल ऑर्बिट कैसा हमारा इलिप्टिक फॉर्म का है, ये हो जाता है वी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा की होल स्क्वेयर, राइट। तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव करा है। लेट्स पुट दिस इक्वेशन एज अगेन इक्वेशन नंबर कितना हो गया था, आई थिंक 5, 4 ये मैम 6 हो 4 जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 कैसे होगा, मैम तीन 4 से इक्वेशन दिए हैं 4 तक दिए थे। I don't know what we have. I think this one is only 5 curves. Okay, then this one is 6. Okay, you just put the name according to you. Copy. अब यहाँ पे देखो हमारे पास किसकी वैल्यू अवेलेबल है, यू स्क्वेयर की भी अवेलेबल है और डी यू बाई डी थीटा की भी वैल्यू हमें मिला है। तो दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यू की वैल्यू क्या है, 1 बाई एल प्लस ई बाई एल कॉस थीटा होल स्क्वेयर, और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी मिली है, तो ई स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। कहाँ से किस इक्वेशन से निकाल रहे हैं, आई थिंक फ्रॉम 1 and 2, because I have deleted the previous page. You just tell me which equation is from 1 and 2. And 3. Okay, wait. I'll look after that. 3, ma'am, This is 3. equation number 2 मैम 2 and and 3 2 and 3. 3 2 and 3. Okay. So from 2 and 3. Here it is from 2 and 3. So from equation number 2 and then from equation number 3. Okay. Now solve this one. H square. Here it is 1 by L square 2 times E by L square into cos theta, right? And here it is E square by L square cos square theta, and again I have E square by L square sin square theta. Fine. Now this is equals to E 1 by L square 2E by L square cos theta plus E square by L square, because we have a cos square and sin square theta here, and so this value is equal to what, H square। अगर एक L को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना मैम? L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला जनरेट करना है। वी हैव अ ellipse and we know that in the ellipse we have some minor axis and the major axis in terms of E and L. That is why I am putting only one L outside, one I am taking inside. Okay. So while taking 1 plus E square divided by L square, I have taken the L outside. So I have 1 plus E square by L here. And here it is 2E by L cos theta. Fine. Now equal to. Therefore, V square equal to, अब क्या हो जाएगा देखो, H square by L. तो H square by L अभी ऐसे ही रखते हैं ना, 1 plus E square divided by L plus 2 times, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, what we have 2E by L cos theta. So again come to the previous equations D square U by D theta from square. here. From here we have E by L cos theta as U minus 1 by L, as E by L cos theta, right?
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम E बाई एल कॉस थीटा को लिख सकते हैं U माइनस 1 बाई एल के बराबर। ओके, तो फ्रॉम 1 वी एम पुटिंग द वैल्यू हियर, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स U माइनस 1 बाई एल। कहां से? तो फ्रॉम 1। नाउ दिस मैम वैल्यू इज फ्रॉम इक्वल टू टू। व्हाट? म्यू फ्रॉम मैम 2। फ्रॉम टू। नाउ यस, फ्रॉम 2। नाउ म्यू इनटू 1 प्लस ई स्क्वेयर। अब 1 प्लस ई स्क्वेयर बाई एल क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ई स्क्वेयर बाई एल को क्या लिख सकते हैं? फिर आते प्रीवियस इक्वेशन में। देखो, हम बोल रहे 1 प्लस ई स्क्वेयर बाई एल। ओके, fine. So let's put this value here. So I have put it the value. Now do the simplification, girls. 1 plus e square by l, and then I have a 2e. Okay, okay. Now 1 by l minus plus e square by l plus 2u minus 2 by l. Okay, I have put it here h square by l as mu because this is a constant value. I have already used this one in the previous equations. Now this one is equal to mu into 1 by L minus 2 by L. It is minus 1 by L plus E square by L, and then I have plus 2U. So this is equal to mu into 2 by R. U को लिख रहे 1 by R, so I have written here 2 by R plus, अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? आई एम टेकिंग द माइनस कॉमन हियर. So we'll take the minus common. Then I have 1 minus e square divided by l. Fine. We'll write like this. Yes, girls? We'll मैम write like एच this. मैम वो एच स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह पे ना यू को रिप्लेस किया गया था। ये म्यू कांस्टेंट कहाँ से लिया गया है जो पी डायरेक्टली H प्रोपोर्शनल है square. हाँ, उसके पहले हम लोगों ने जब इक्वेशन बनाया था तो वहां पे देखो एच स्क्वेयर बाई एल, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू था, उसको हम लोगों ने म्यू का नाम दिया था. अच्छा हाँ अच्छा या ये यू कांस्टेंट वैल्यू है, आप उसको कोई भी अलग सा नाम दे सकते हो बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है. आई हैव पुट इट दिस एज अ म्यू. मैम मतलब जहाँ पे हमारा एच स्क्वायर बाय एल था तो वहाँ म्यू इज इक्वल टू 1/r जो लिखा था वो है। u इक्वल टू 1 बाई आर यहाँ पे है. दिस इज द अच्छा वेरिएबल, the distance अच्छा of the मैम radial velocity, sorry, radial मैम जो आपका distance था. तो मैम म्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एल ना। Yes, mu equal to h square by l and u equal to 1 by r. Both are different. Now ओके you put this equation, give some name. So 6, and now we have this one is a 7. Equation number 7. मैम 1 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा ना मैम, फिर माइनस तो फिर नहीं अब होगा। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, हमने माइनस बाहर रखा तो इस तरह से लिख दिया. अगर आपको ब्रैकेट देना तो आप ब्रैकेट दे सकते हो. ये दोनों एक साथ है, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी ये सही है. ठीक है, क्योंकि डिवीजन में है, एक साथ काउंट होगा. यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ बच्चा? मैम नेक्स्ट जब हम लोगों को मिल गया तो हमने देखा क्या, v स्क्वायर का वैल्यू है म्यू 2 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय l के बराबर है. वी हैव पुटेड दिस इक्वेशन नंबर 7. अब देखो, अगर 2a and 2b are the length of the major axis and the minor axis, of the ellipse, then what we have, girls? What is the latest rectum? b square by a. यही है ना. ये अगर b आपका माइनर है तो हम लोग बी स्क्वायर बाई ए लिखते हैं. सिंस अब बी स्क्वायर बाई ए को इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो बी स्क्वायर बाई ए का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है?
a square 1 minus e square. Yes girls, याद आ रहा है? We have b square equal to a square 1 minus e square, right? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So divided by a लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में. Now a and a getting cancelled, so we have here it is a into 1 minus e square only, right? तो L का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से a into 1 minus e square के बराबर. So but we are looking for what? 1 minus e square, ये हमें यहाँ से रिप्लेस करना है. तो 1 minus e square का वैल्यू हो जाएगा, और अगर डिवाइडेड बाई L है so डिवाइडेड बाई L, so this value is equal to what? 1 by a. Okay, and therefore v square का वैल्यू from 7, और अगर इसे रख दे 8, तो from 7 and 8 we have v square equal to what? Mu into 2 by r minus 1 by a. Okay, now put this as equation number 9. So we have v square here. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? This is the equation of the velocity. So which gives the velocity here, which gives the velocity at any point, okay, at any point of the path. In this case हम लोग को क्या दिख रहा है? तो here देखिए, in this case we see that v square is less than 2 mu by r. ये याद रखना कंडीशन. ठीक है, क्यों? क्योंकि -1 by a है यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे v स्क्वायर का आएगा वो हमेशा क्या होगा? 2 mu by r से छोटा ही होगा, राइट? Gus, is that clear? The velocity part. Let's move to the next one, that is periodic time. So next is periodic time. Third one. Periodic time. So first, let's see कि यहाँ पे अगर periodic time की हम बात करें तो periodic time होगा क्या? So here the periodic time is the complete oscillation. One complete oscillation के लिए जो हमें टाइम बोलते हैं किसी भी चीज में, जैसे मूव कर रहा है, तो पूरा एक बार यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसको हम बोलते हैं पीरियडिक टाइम, राइट? तो क्योंकि हम लोग यहाँ इलिप्स की बात करें तो इलिप्स में ये जिसका सरफेस से पूरा मूव करने के बाद जब ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे इसका क्या देगा? आपको पीरियडिक टाइम देगा. तो यहाँ हम लिखेंगे कि वी नो दैट in a central orbit the rate of description of the sectorial area, the rate of description of the sectorial area is constant and equal to h by 2 and equal to h by 2. ये वैल्यू h by 2 के बराबर होता है. मान लेते हैं कि t जो है ये एक टाइम पीरियड है. लेट t be the time period. Okay. For one complete oscillation. One complete oscillation. That is, अब ये है क्या? That is the time taken by the particle in describing the whole length of the ellipse. जितना उसका आउटर लेंथ सर्कमफ्रेंस जो है उस पे वो का चल रहा है, ठीक है? तो उसके लिए the whole of the ellipse.
Now, what is the sectorial area? लिखेंगे the sectorial area सेक्टोरियल एरिया को हम कैसे ट्रेस करेंगे? तो सेक्टोरियल एरिया ट्रेस in describing, so here the sectorial area trace in describing the whole. मैम एरिया के बाद क्या लिखे? Trace, TRESS, trace in describing the whole area of the ellipse is equal to the whole area of the ellipse. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे t इंटू एच बाई टू जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? पाई ए बी के बराबर, क्योंकि एरिया जो हो जाएगा एलिप्स का वो पाई ए बी होगा। ठीक है, और तब ये हो जाएगा t टाइम्स h बाई टू के बराबर। नाउ t इंटू एच यहाँ से जो हमें मिलेगा ये हो जाएगा 2 पाई ए बी। ओके, तो 2 पाई ए बी है, तो अब इसे हमें क्या चीज की वैल्यू हमें पता है। हम लोगों ने जब इसके प्रीवियसली इसको फाइंड करा था तो हम लोगों ने एक चीज देखा कि जब ये वैल्यू हम लोगों ने लिखा तो हम लोगों ने लिखा था म्यू की वैल्यू एच स्क्वेयर बाई एल के बराबर है। तो यहां से हम लिखेंगे सिंस एच स्क्वेयर इक्वल टू म्यू इंटू एल, ये हम लोगों ने फाइंड करा है। इसीलिए यहां से t का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई ए बी डिवाइडेड बाई h है, तो यहाँ h के जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई ए बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर म्यू इंटू एल। फाइन, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई ए बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर म्यू, और l की वैल्यू व्हाट? बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a। तो ये बी स्क्वेयर बाई ए की वैल्यू को फिर अगर हम चेंज करना चाहे इन टर्म्स ऑफ ए, तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पाई, देखो ए बी यहाँ ऑलरेडी ऊपर में है, अगर इस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मुझे नीचे यहाँ बी मिलेगा, ये रूट ए ऊपर चला गया, यहाँ से ये रूट म्यू में रह गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि t का वैल्यू कितना हो गया? therefore t is what? 2 pi a to the power 3 by 2 and this whole divided by root mu के बराबर है। तो this is the time period, right? और ये आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हम जब क्वेश्चन बनाएंगे then we are going to use this formula to solve the question, right? Now next is our deduction. तो क्या क्या हमें यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं? देखो, फर्स्ट वन, इन केस ऑफ हाइपरबोला, बोलिक ऑर्बिट, ओके, हाइपरबोलिक ऑर्बिट, अगर हाइपरबोलिक ऑर्बिट होगा तो इसमें ई क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, और लेंथ लेटेस्ट रेक्टम जो होते हैं ये होती है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए के बराबर। फाइन, तो अभी हम लोगों ने लिखा L की वैल्यू 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए है, तो सिर्फ इसी पार्ट पे हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अभी हम लोगों को क्या आ रहा था? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता जब हम लोगों ने इलिप्स पढ़ा था, लेकिन जैसे हाइपरबोला के लिए आते हैं तो ये चेंज हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए के फॉर्म में, कैंसल आउट करेंगे तो ये होगा ए इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस वन आई हैव 1 माइनस ई स्क्वायर बाई एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगा माइनस 1 बाई ए के बराबर। देयरफॉर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वी स्क्वायर, ये हो जाएगा म्यू 2 डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे अब देखो माइनस 1 बाई ए आ रहा था, अब ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाई ए हो जाएगा इन केस ऑफ हाइपरबोला। तो वेलोसिटी में बस यही आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा, राइट? ये चीज समझ में आया गर्ल्स?
और हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 म्यू डिवाइडेड बाय r, राइट। आते इन केस ऑफ, अब यहाँ पे पैराबोला क्या मिलेगा, देखो सेकंड, इन केस ऑफ पैराबोला, पैराबोला में हम लोग क्या देते हैं, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। तो 1 माइनस ई स्क्वेयर बाई एल की जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, क्योंकि ई की वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस ई स्क्वेयर की वैल्यू भी 0 हो गई, तो हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0 मिल गया। इन दिस केस वेलोसिटी जो है अब क्या बनेगा, देखो म्यू एज इट इज बाहर स्टैंड कर रहा है, ये 2 बाई आर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला में 1 माइनस ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल होता था, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा प्लस 0 के बराबर। देयरफॉर जब पैराबोला का केस होगा तो ये हो जाएगा 2 म्यू डिवाइडेड बाय आर। क्लियर गर्ल्स? इलिप्स में क्या था, 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए, यहाँ पे 2 म्यू बाई आर हो गया। क्लियर है सभी को? एनी डाउट गर्ल्स, एनी डाउट? नो मैम। रिप्लाई। नो मैम। ओके, नाउ थर्ड। अब इन केस ऑफ इन सेंट्रल ऑर्बिट में तो अब इन डायरेक्ट देखो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और हाइपर इलिप्स ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इन केस ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, तो सेंट्रल ऑर्बिट का कितने केसेस हो गए, 3 हो गया। पहला है इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू 2 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 बाई ए, कब, जब ये होगा इलिप्स। v स्क्वायर हो जाएगा म्यू 2 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 बाई ए, कब, जब ये होगा हाइपरबोला। हाइपरबोला। और v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू बाई r, कब, जब ये हो जाएगा पैराबोला। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा देन यू हैव टू डायरेक्टली राइट दिस आंसर्स। अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछेगा देन यू हैव टू डिराइव द वेलोसिटी तक आप डिराइव करोगे, और उसके बाद आप यहाँ पे ये आंसर्स दे दोगे। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे वेलोसिटी पूछा है, लॉ ऑफ फोर्स वगैरह नहीं पूछा, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u निकालना होगा, du बाई डी थीटा निकालोगे, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे, एंड देन सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई करते हुए आप डायरेक्टली यहाँ पर इस केस तक पहुंच सकते हो। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, और जनरली आपके जो है सेंट्रल ऑर्बिट के नाम से ही आता है, तो आपको तीनों पार्ट जो है डिड्यूस करने पड़ते हैं, राइट। अगर स्पेशली रहेगा कि सर हाइपरबोला के लिए बनाइए या एलिप्स के लिए बनाइए, तब आपको ये सब डिसीजन देने की जरूरत नहीं होगी। एलिप्स का पूछा तो एलिप्स तक ही लिखेंगे, और टाइम पीरियड हर जगह आपने नहीं देना है, जहां पूछेगा वहीं देना है, राइट। थैंक यू ऑल। So this one is the full screen girls, just take a screenshot. So आज के लिए इतना ही, thank you all.